ક્યાંથી અવાજ આવ્યો? જ્યારે પણ આપણે એક નવી શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે હંમેશા ગુડ મોર્નિંગથી જ કરવી જોઈએ. કાંઈ પણ નવું શીખવા મળે ને ત્યારે પોતાની જાતને કહી દેવાનું કે મારા માટે એક નવી શરૂઆત થઈ છે, એક નવી સવાર આવી છે, કંઈક નવું શીખવા મળ્યું છે. તો આપણા પ્રોગ્રામમાં પણ આજે એવું છે, આપણે કંઈક નવું શીખવાના છીએ. તો ફરીથી ગુડ મોર્નિંગ થઈ જાય. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. સરસ. फूलों की शुरुआत कलियों से होती है. फूलों की शुरुआत कलियों से होती है. रिश्तों की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आप सभी से होती है. मैं रश्मि प्रवीण पटेल आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, जो કહેવાય છે ને કે કોઈની સાથે કંઈ ખરાબ થાય, ક્યારેક એવો ખરાબ વર્તન કે વ્યવહાર થાય તો લો એટલે કાનૂનની દ્રષ્ટિમાં જો જોવા જઈએ ને તો એક ગુનો, અપરાધ કહેવાય છે. પરંતુ મારું માનવું એવું છે કે તમારો કંઈ પણ વાંક ગુનો ન હોવા છતાં પણ તમે જે અત્યાચાર સહન કરો છો એ પણ એક મોટો ગુનો છે. તો તમારા વાંક વગર ક્યારે પણ ખોટો અત્યાચાર સહન નહીં કરવાનો. અને આપણો આજનો પ્રોગ્રામ એવો જ કંઈક છે કે જ્યારે તમારી સાથે કંઈક ખરાબ થતું હોય છે તો એની સામે આપણે કેવી રીતના, કેવી એક્શન લેવી જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે પોતાની જાતને સુરક્ષિત કરી શકતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણી વહુ કે દીકરીઓ સાથે અભદ્ર વ્યવહાર થાય છે અને જ્યારે એ આવી અને એની માતા, સાસુ કે ઘરમાં કોઈને વાત કરે છે ને કે મારી સાથે આવું વર્તન, વ્યવહાર થયો છે, ત્યારે જનરલી આપણે મોટા ભાગે છે ને બધા એવું જ કહી દેતા હોઈએ છે કે ચૂપ બેસ, કોઈને વાત કરવાની નથી. જો આ વાત આપણે કરશું ને તો આપણી બદનામી થશે. પરંતુ એ વખત આપણે એવું નથી વિચારતા કે આપણા સાથે ખરાબ થયું છે તો એનો આપણે એક્શન લેવી જોઈએ અને એના ગુનાને રોકવા માટે કંઈક એવું કાર્ય કરવું જોઈએ કે જે આપણી સાથે થયું છે એ બીજાની સાથે ન થાય. જ્યારે આવા વિચારો આપણે સમાજમાં લાવશું ને ત્યારે જ આપણી સમાજમાં, આપણા દેશમાં, આપણા રાષ્ટ્રમાં જે એસિડ એટેક, બળાત્કાર અને બીજા બધા જે ગુનાઓ થતા હોય છે ને એને આપણે રોકી શકશું. અને 100% મને વિશ્વાસ છે એના માટે પહેલ આપણે જ કરવી પડશે. કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો પહેલે જો આપણાથી કરીએ ને તો હંમેશા અને હંમેશા એ કાર્ય સફળ જ થાય છે. તો આપણા આજના પ્રોગ્રામમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે આપણા એવા જ મહેમાન કે આપણી સાથે થતા દુર્વ્યવહારને આપણે કેવી રીતના રોકવાના અને સ્વરક્ષણ, પોતાનું રક્ષણ કેવી રીતના કરવું તેના માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ મુકેશભાઈ રાઠોડ અને શ્રદ્ધાબેન. જોરદાર તાળીઓથી હું વેલકમ કરું આપણે મુકેશભાઈ અને શ્રદ્ધાબેન. તાળીઓ એમની સાથે બીજા જેવા આપણે આમંત્રિત મહેમાન છે શ્રદ્ધાબેન. તો આપણે શ્રદ્ધાબેનને પણ જોરદાર તાળીઓથી એમનું વેલકમ કરશું અને શ્રદ્ધાબેનને પણ આમંત્રિત કરશું. શ્રદ્ધાબેન, જોરદાર તાળીઓથી શ્રદ્ધાબેનનું વેલકમ કરશો. મહેમાનને આમંત્રિત કરે છે તો ખાલી સ્થાન ગ્રહણ કરવાથી એમનું સન્માન નથી વધતું, પણ આપણા આમંત્રિત મહેમાનનું સન્માન વધારવા માટે આપણે એનું પુષ્પગુચ્છથી પણ વેલકમ કરશું. મુકેશભાઈનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે હું આમંત્રિત કરીશ મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી લીલાબેન નાકરાણી. વેલકમ લીલાબેન.
મિત્રો, તાળીઓ તો પડવી જ જોઈએ. એવા જ આપણા બીજા આમંત્રિત શ્રીમતી શ્રદ્ધાબેન ગોહિલનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે આપણા મહિલા મંડળના માજી પ્રમુખ અનસુયાબેન સાંકલા. આપણી દરેક આ મુવમેન્ટને જે ફોટોગ્રાફીમાં કેપ્ચર કરી રહ્યા છે તેવા હિતેશભાઈ વાણીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે મહિલા મંડળના ઉપપ્રમુખ લીલાબેન મૈયાર, નીતાબેન મૈયાર. આ ચશ્મા નથી પહેરે ને એટલે. જેમ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં મેં તમને જણાવી દીધું કે આપણા સાથે થતા દુષ્કર્મ, ખરાબ વ્યવહાર ને કેવી રીતના રોકવો અને કેવી રીતના પોતાની જાતને સક્ષમ બનાવવી, એના માટે જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે મુકેશભાઈ, એમના માટે જો કહું ને તો લગભગ આપણો પ્રોગ્રામ એમના પરિચય માટે જ પતી જશે, પરંતુ તે છતાં હું થોડીક ટૂંકી માહિતી આપી અને મુકેશભાઈને તમારા બધાથી જાણકાર કરીશ. ત્યારબાદ આપણો પ્રોગ્રામ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. મુકેશભાઈ રાઠોડ માર્શલ આર્ટ ટ્રેનર અને મોટિવેશનલ સ્પીકર છે. તેઓ રામા ફિઝિકલ સ્પોર્ટ્સ એકેડમીના સ્થાપક પણ છે અને પ્રમુખ પણ છે. મુકેશભાઈએ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કોમ્બેટ માર્શલ આર્ટ સોસાયટી તરફથી 7th ડેન બ્લેક બેલ્ટ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેમણે 2001થી તેઓ સમગ્ર ભારતમાં શાખાઓ સાથે સ્પોર્ટ્સ એકેડમીમાં છે. તેમણે રમતગમતને જે મહત્વ આપ્યું છે તેટલું જ મહત્વ તેમણે સતત 5 વર્ષથી ઘણી શાળાઓમાં બાળકોના વિકાસ માટે, બાળકોમાં શીખવાની રુચિ માટે, માતા પિતા અને બાળકો વચ્ચેના સંબંધો સુધારવા માટે પણ આવા કાર્ય કરેલા છે. આજના બદલાવમાં શિક્ષકોને સંતુલિત કરવા માટે પણ એમણે મોટું યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે પોતાના સેમિનાર દ્વારા લોકોના જીવન અને વ્યવસાયને બદલી નાખ્યા છે. તાજેતરમાં કહું તો સુરત, ગુજરાતમાં તેમણે 1,51,000 દીકરીઓને સ્વરક્ષણ કૌશલ્ય તાલીમ આપી છે. જોરદાર તાલીમ થઈ જાય. અને આ દરેક તાલીમ લેનાર દીકરીઓને મુકેશભાઈએ આપણા ગુજરાતના માજી મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા દરેક દીકરીઓને પ્રમાણપત્ર પણ અપાવ્યા છે. ત્યારબાદ તેમણે 51 લાખ મહિલાઓને સ્વરક્ષણ તાલીમ આપવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, જેમાંથી તેમણે 11 લાખનો લક્ષ્યાંક પૂર્ણ કરેલો છે. ખૂબ સરસ કાર્ય છે મુકેશભાઈના. આ હતો મુકેશભાઈનો પરિચય. મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે જો વધારે કહેવા જઈશ તો આપણો પ્રોગ્રામ એમના પરિચયમાં જ પૂરો થઈ જશે. તો આપણો વધારે સમય ના લેતા હવે આપણે મુકેશભાઈને કહીએ કે આપણો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરે, કે જેની આપ સૌ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सर. और एक बार पूरी एनर्जी के साथ उमिया माता जी ने जय बोलना है. 3 बार बोलना है मेरे साथ. उमिया माता जी ने, उमिया माता जी ने, उमिया माता जी ने. और आपको यहाँ पे मेरे साथ जो भी समय देना है वो पूरी एनर्जी के साथ आप देंगे. और आज का मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आज का दिन आप कभी नहीं भूलेंगे. आज का दिन कुछ अलग होगा. और हकीकत में जब आपका ये वीडियो
जब दूसरी महिलाओं के पास जाएगा तो उनको एक बार जरूर पछतावा होगा कि काश मैं गई होती वहाँ। तो सबसे पहले हम एनर्जी को बुलाते हैं। एनर्जी बाहर खड़ी हुई है ना। मेरे साथ में ताली बजाएंगे, ठीक है? खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े होके करेंगे, ठीक है? मेरे साथ में करेंगे 3 बार साथ में, साथ में। वेरी गुड, बैठ जाइए। और आदरणीय जया बहन जी, जो कि पिछले 3-4 दिन से मेरे संपर्क में है, हर वक्त उनका कॉल आता है, कहाँ पे काम पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, इतनी मेहनत समाज के लिए कोई नहीं करता है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। हमारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए रश्मि बहन का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। गोसा जी के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाएं। और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और कार्यक्रम को एक शोभा देने के लिए। मैं सभी को लिए चाहूँगा कि अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और जिनका मैं नाम नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों की इसमें मेहनत है, बहुत लोगों ने मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि मैंने नाम लिया तो उन्होंने मेहनत नहीं की है, सबने मिलके काम किया है। तो मैं चाहूँगा एक बार वो पूरी टीम के लिए एक बार ताली जोरदार हो जाए। इसके बाद एक शख्सियत और है जिसने एक बड़ा कड़ी जोड़ी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ और जिसकी वजह से आप पहुँच पाए, जिसने शुरुआत की है, नींव डाली है। तो मैं स्टेज पे उनको बुलाना चाहूँगा। सो प्लीज़ वेलकम जिनल बहन। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका। मैं खुद उनका सम्मान करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली रामा मार्शल आर्ट्स एक ग्रुप है और मैंने आपके तरह ही 2012 31 दिसंबर 2012 किसको को याद है? 31 दिसंबर 2012 किसी को याद है? 16 दिसंबर 2012 मुझे वो दिन ऐसे याद है कि जैसे मेरी फैमिली के अंदर कोई घटना घटी थी। 2012 16 दिसंबर को दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप होता है। 31 दिसंबर को उसका दम टूट जाता है। आप लोगों की तरह मैं भी जब न्यूज़ खोल के देख रहा था तो मैं खाना खाते खाते रुक गया था कि मैं सोच रहा था हो क्या रहा है और वाकई में हम लोग कर क्या रहे हैं। केवल मेरा परिवार, मेरी फैमिली, बस बाकी जो हो रहा है होने दो। उसी दिन मैंने वो खाना छोड़ा और मैंने खड़े होकर संकल्प किया कि कम से कम 1,51,000 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे के रहूँगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए। जब मैंने अनाउंसमेंट किया तो बहुत सारे मास्टर बोले कि सर आप क्या कर रहे हो, आप फ्री में करोगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। मैं बोला जो भी हो, मेरा एक संकल्प है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपको मिलेगा क्या इससे। तो मैंने उसको ये जवाब दिया उन लोगों को कि कम से कम जिंदा रहने का एहसास होगा कि मैं भी जिंदा हूँ। हमें समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। तभी ये समाज मजबूत बनेगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। समाज अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो उमिया माता जी की कृपा रही कि करीब 10-12 साल से मैं बराछा में उमिया माता जो मंदिर है वहाँ पे, नर्मदा बहन को बहुत लोग जानते होंगे, तो उनके साथ रह के मैंने कई सेमिनार लिए और पटेल समाज की हर बार 400-500 लड़कियां वहाँ पे आती हैं अलग अलग स्टेट से, उनको ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि अंकलेश्वर में मुझे आने का मौका मिला, आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। और ये भी मैं बता दूं कि सेल्फ डिफेंस तो हम सबके लिए ज़रूरत है, एज चाहे आपकी कितनी भी हो। आज सूरत में ऐसी ऐसी घटना बनी है, अभी कुछ दिन पहले आपको पता है 1.5 महीना पहले एक 3 साल की बच्ची का सर रेप होता है।
आप सोचिए कि कितना घिनौना होता जा रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे कमेंट करते थे कि लड़कियों की भी गलती है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव एक थे, बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि लड़कियों की भी गलती होती है, महिलाओं की गलती होती है, क्योंकि वो कपड़े टाइट पहनते हैं, शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, उनकी भी गलतियां होती हैं। तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं वीडियो में मैंने सवाल जरूर पूछा था कि वो 3 साल की बच्ची कौन से फिटिंग कपड़े पहनती है। 58 साल की महिला जो मुंबई में रेप हुआ था, उसने कौन से फिटिंग कपड़े पहने होंगे? वो तो साड़ी पहन के रहते थे। तो कपड़ों में कुछ नहीं है, हमारा नजरिया कैसा है इसमें सब कुछ है। कपड़ों से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात यह है, महिलाओं का सम्मान जिस समाज में हुआ है, चाहे वो कोई भी समाज हो, जो भी समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। आप देखेंगे जिस घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ गाली गलौज होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, वहाँ देखना उस घर में कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी भी नहीं टिक सकती। और आप देखेंगे कि जिस घर में लड़की भी ना हो, छोटी लड़की भी ना हो, वो घर एकदम सुना सुना लगता है। आपने महसूस किया होगा, मैं कोई ये बातें बोल के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपने महसूस किया होगा, कितना भी शानदार घर बना हो, बंगला बना हो, लेकिन जिस घर में एक छोटी लड़की ना हो या कोई महिला ना हो, वो घर की रौनक ही नहीं रहती। तो मैं सभी समाज से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी लड़कियां हैं या हमारे पास महिला हैं, उनकी हमेशा वैल्यू पहले अपने परिवार में करें। हम अगर उनकी वैल्यू करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हम आगे भी समाज के अंदर जाएंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस का। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हो, इतिहास बदल सकते हो। इतने लोग बैठे हैं और ये छोटी मामूली बात नहीं है। किसी एक कॉल पे आप अगर इतने इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि लोग आलस करते हैं, कौन जाएगा, 2 घंटे बर्बाद करेंगे, क्या मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने वो जो हमारे थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव रख के आप आए, ये बड़ी बात है आपके लिए, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं टीवी में, मोबाइल में, हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हकीकत ये भी है कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 2 घंटे मेरा मोबाइल में नहीं देख सकती, 2 घंटे मुझे मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, 2 घंटे में बात नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हकीकत ये है कि मोबाइल आज देखेंगे ऑल वर्ल्ड के अंदर मोबाइल से एजुकेशन भी दिया जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल जब तक आप यूज कर रहे हो मोबाइल को, तब तक बेस्ट है। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। जिस दिन से मोबाइल आपको यूज करने लगता है, दैट इज डेंजर, वो बहुत खतरनाक। मोबाइल अगर आपको यूज करने लगा, वो बहुत खतरनाक है। तो कोशिश ये करें कि मोबाइल हमें यूज ना कर पाए, हमें मोबाइल को यूज करें। पहली सबसे बड़ी गलती, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात को सोते समय मोबाइल को अपने पास में रखते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, बेड पे होगा, तकिए के नीचे ज़्यादा रहता है। इट इज़ वेरी डेंजर, बहुत खतरनाक है। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते जाते हैं, थोड़ी कोई बात करने को सहन शक्ति खत्म हो जाती है। आप देखना, अगर कोई आपके घर में बच्ची है या कोई और पर्सन है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा, तो देखना कहीं मोबाइल रख के तो नहीं सो रहा है। हमारी बॉडी जब वो स्लीप मोड में होती है, तब ये बहुत हावी हो जाता है। तो कभी भी कोशिश करें कि जब हम सोते हैं तो आपका मोबाइल कम से कम 8 से 10 फुट आपसे दूर रहना चाहिए बॉडी से। या फिर सबसे बढ़िया अच्छा है कि आप फ्लैट मोड पर लगा दो, या फिर उसको स्विच ऑफ कर दो सोते समय स्विच ऑफ करते हैं, एक अलार्म लगा देंगे 5 बजे, तो अलार्म के लिए आपको मोबाइल चालू करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को पता है मोबाइल अगर आपको अलार्म लगाते हैं? कितने लोग यही जानते हैं? 80% लोगों को यही पता है कि मोबाइल अगर हमने अलार्म लगाया है तो सुबह ऑन करना पड़ेगा, ऑन नहीं करना पड़ता है। हाँ, आप अगर कोई भी मोबाइल, सिंपल मोबाइल हो या कोई भी मोबाइल, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम की है। अगर समझो अलार्म, अभी मेरी हैबिट है 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ। मैं रात को मोबाइल जैसे सोने जाता हूँ, पहली बार तो मोबाइल मेरे बेडरूम में उसको अलाउड ही नहीं, एंट्री नहीं है उसको। मोबाइल को एंट्री नहीं, मेरे बेडरूम में नहीं जा सकता है मोबाइल, टीवी, बिल्कुल एंट्री नहीं है उसकी। जब तक मुझे देखना है हॉल में देखूंगा, बाद में अपना बिस्तर पे जाके सो जाऊंगा।
दूसरी बात, मोबाइल जब मैं अलार्म लगाता हूँ तो सुबह 5 बजे का अलार्म होता है और रात को मैं 11 बजे करीब जब भी मुझे सोना होता है मैं स्विच ऑफ करके चला जाता हूँ अपने रूम में, और अपने आप वो सुबह ऑन हो जाता है, अपने आप बज जाता है। आज ट्राई करना सब लोग, और ये बहुत ही डेंजर है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लगता है हाउस वाइफ हैं, शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा, क्योंकि आप जो चीज़ें सीखेंगे ना वो बहुत लोगों को सिखा सकते हैं घर में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये ज़रूर चेक करना। कई लड़की ऐसी होती है कि बात बात पे जवाब दे देती है, चिल्ला जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उसकी भी यही प्रॉब्लम है। मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखवाइए उसको। मोबाइल देना बंद मत कीजिए, देना बंद करेंगे तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप सोचेंगे मोबाइल नहीं दें, ऐसा नहीं, मोबाइल तो देना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिटेशन टाइम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारी जो लाइफ है वो हम किस तरह से जीते हैं इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लाइफ हम क्या हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कैसे जी रहे हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी को कमांड कौन करता है? हमारी बॉडी को कौन चलाता है? माइंड। और माइंड को कौन चलाता होगा? माइंड को कमेंट कौन करता होगा? हम मतलब क्या? ये तो वो हो गया कि आपको कौन पढ़ाता है? बोले टीचर। टीचर्स को कौन पढ़ता है? टीचर को हम पढ़ाते हैं। हम मतलब सोच, थॉट्स, हमारी जो सोच होती है ना, थॉट्स, जो हमारी जो सोच, थिंकिंग, वो हमारे माइंड को कमेंट करती है। अंडरस्टैंड? मान लो कि शीतल बहन ने कभी ऐसा सोचा होगा माइंड में कि अंकलेश्वर में एक बार प्रोग्राम हो तो कितना अच्छा। पहले क्या किया था? केवल थिंकिंग किया था, सोचा था केवल। जब सोचा तो माइंड को कमेंट मिला, तो शायद उन्होंने अपनी सास से या हस्बैंड से या फैमिली में किसी से, या कोई आपकी सखी होगी, उनके साथ बात की होगी कि क्यों ना सर को एक बार बुलाया जाए। पहले सोचा ही था, फिर क्या हुआ? वो सोच ने कमेंट किया माइंड को कि मोबाइल से बात करनी है या सामने सामने बात की है। राइट? बात हो गई तो फिर बॉडी से काम करवाया। कुर्सियाँ कौन लगाएगा? ये टीम लगाएगी, है ना? स्वागत कौन करेगा? ये टीम करेगा। ये इस तरह से प्रक्रिया है। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, सोच को स्ट्रांग बनाइए। जब तक आप स्ट्रांग नहीं सोचेंगे तब तक आपका लाइफ बदलेगा नहीं। कहते हैं ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी लाइफ में कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, गर है हौसले बुलंद तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, सोच पॉजिटिव होना चाहिए, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक एक्ट लेके आए, पता है आपको? 2016 में एक कानून बनाया है कि महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अगर कोई देखता है, उसकी मर्जी के खिलाफ देख रहा है, जैसे मैं आपको देखूं कुछ 15-16 सेकंड अगर मैं देखता हूं, 14 सेकंड जैसा, तो मुझे जेल हो सकती है, पता है? ये कानून बन चुका है। अगर मैं आपके मर्जी के खिलाफ, मैं आपको घूर रहा हूँ, देख रहा हूँ और आपकी मर्जी नहीं है, तो आप मेरे खिलाफ अगर कंप्लेंट लिखाओगे तो एक एक्ट है जिससे मुझे जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है ना? बिल्कुल महिलाओं के लिए सही है, लेकिन मेरा एक नज़रिया ऐसा भी है जिसको मैं सही नहीं मानता। वो कैसे कि मैं देख रहा हूं कि हर बार महिलाओं के फेवर में एक कानून बनता है, हर बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनता है। मैं तो चाहता हूं कि महिलाएं इतनी सशक्त बने, महिलाएं इतनी सशक्त बने कि लड़की अगर लड़के को घूरे ना तो वो पुलिस स्टेशन में भागे जाके कि मुझे डर लगता है वो घूरती है मुझे। इतना सशक्त आपको बनना है। हर बार महिलाओं को कमजोर दिखाने की कोशिश होती है। महिला कहीं से कमजोर नहीं है, बस एक ज़रूरत है एक स्टेप लेने की। और मैं आज जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो तो बहुत ही अलग है। इतनी सिंपल टेक्निक्स हैं वो कि आप खुद बोलोगे हाँ ये तो हम कर सकते हैं। यानी जो टेक्निक्स हैं वो आपके आसपास में ही है, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। जिस दिन मैंने ये टेक्निक का कोर्स किया था तभी पहले यही कोशिश की थी कि मैं अगर मार्शल आर्ट्स की, कराटे की ट्रेनिंग दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। हो सकता है 2-3 महीने में तो बॉडी को फिट करने में टाइम लग जाएगा, तो कब सीखेंगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो इजी हो, ऐसा कोर्स बनाया जाए। जो मैं आज सिखाने वाला हूँ ये मार्शल आर्ट्स का पार्ट ही नहीं है,
माशा के माध्यम से एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है कि जिससे कोई भी महिला, आप अपनी बेटी को सिखा देंगे ना, आपका 90% जो चिंता होती है ना आपकी दूर हो जाएगी। ये इतना बढ़िया है कि कुछ भी चीज़ है आपके पास, मान लो मोबाइल है, पेन है, दुपट्टा है, हेयर पिन है, कभी भी जरूरत पड़ गई इसको यूज करके अपना बचाव कर सकते हो। और क्या चाहिए इसमें? आपको चाकू रखने की जरूरत नहीं है, डंडे रखने की जरूरत नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको कैसे हथियार बनाना है, यही एक आज का सेमिनार है। दूसरी मैं बात करूंगा कि सोच को आपको बदलना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए मोटिवेटर मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो 2-4 बात मैं पहले बताता हूँ जो आपको काम आएंगी। हमारा गोल भी क्लियर होना चाहिए। गोल मीन्स लक्ष्य, ध्येय, कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और ऐसा कभी मत सोचो कि मेरी तो लाइफ हो गई पूरी। अक्सर ज़्यादा महिलाओं की कोशिश ये होती है, जब उनकी शादी नहीं होती है ना, उससे पहले वो एरोबिक्स करेंगी, योगा करेंगी, जिम करेंगी। शादी हो गई फिर सब छोड़ देती। उसका कारण क्या है मालूम है? जैसे हम भागते चलते ट्रेन में बैठ जाते हैं ना, अब ड्राइवर के ऊपर वो कैसे भी चला है, हमको कोई मतलब नहीं। अंडरस्टैंड? तो हमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपकी जो फिटनेस है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपकी बॉडी फिट है और आपने 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का टॉप भी पहना है तो भी अच्छा दिखेगा, राइट है ना? टी शर्ट भी 100 रुपए की पहनोगे अच्छी दिखेगी। बॉडी फिट नहीं है, 5-5 हज़ार के पहनो, 10 हज़ार के पहनोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हर रोज अपने लिए हम 12 घंटे 15 घंटे परिवार के लिए काम करते हैं, फैमिली के काम करते हैं, उसका नाश्ता, उसका चाय, झाड़ू पोछा सब खर्च करते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तब हम मुंह मोड़ लेते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो टाइम ज नहीं। सवार थी सांझे हमारा झाड़ू पोछा में निकली जाए ना, आ करो ना टाइम करे थी जाए। रियल ये बहाने एक्सक्यूज है। और जितने लोग एक्सक्यूज निकालते हैं ना, वो अपने खड्डे में जा रहे हैं। वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा देते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा जया जी से कि आपका बहुत अच्छा मुझे कार्यक्रम लगा कि आपने इतने लोगों को बुलाया। और आपके समाज का जो मंडल है, जो भी संस्था है, उसके माध्यम से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि योगा का या फिटनेस के लिए एरोबिक्स का, मैं एरोबिक्स का भी ट्रेनर हूँ। एरोबिक्स का मैं खुद ट्रेनर हूँ। एरोबिक्स का एक ट्रेनर कहीं से अपॉइंटमेंट करके सबको बढ़िया फिटनेस हम दे सकते हैं। एरोबिक्स में एक्चुअली क्या होता है, बोरिंग नहीं होता है, म्यूजिक चलता है तो आप अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं। योगा बहुत जरूरी है, आपको पता है। योगा अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया तो गवर्नमेंट, हमारे भारत सरकार आउट ऑफ कंट्री में बेचती है, आपको 2.5 से लेके 5 लाख तक का पैकेज देती है महीने का। उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पता ही नहीं। तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ब्लैक बेल्ट की कितनी वैल्यू है पता है? अभी ब्लैक बेल्ट अगर कोई महिला है, लड़की कहीं कर ले ब्लैक बेल्ट को, तुरंत नौकरी लग जाती है। एक तरफ MA की हुई इसकी नौकरी नहीं लगेगी, ब्लैक बेल्ट की तुरंत लग जाएगी। स्पोर्ट्स में भी बहुत ग्रोथ है। तो आप लोगों का रुझान जाना चाहिए। आपकी जो बच्चियां हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको भी ये समझाना है कि बेटा पढ़ाई तो ठीक है। और एक मैं कड़वी बात बोल देता हूँ आपको, शायद यहाँ पे कोई स्कूल भी चला रहा होगा, खराब लगेगी। हम जो स्कूल में आज पढ़ रहे हैं ना, वो 95% हमको कुछ काम नहीं आता। 90% हमारी लाइफ में काम नहीं आता। प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा होना बहुत जरूरी है। हम डिग्री के ऊपर भाग रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल है नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारा होना चाहिए वो है ही नहीं। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। आज सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं, अगर वो उसको पढ़ाते थे मम्मी पापा मार मार के, इंजीनियर बन जाता ज़्यादा से ज़्यादा। कितना पगार होता है? 1 लाख 2 लाख। ऐसे तो आप इंजीनियर की शुरुआत 25,000 से शुरुआत चल रही है, 10-20 हज़ार से स्टार्ट हो रही है, 20 हज़ार से स्टार्ट होती है अभी इंजीनियर की। तो सचिन तेंदुलकर आज वो चाहे तो एक दिन में 50 करोड़ भी कमा सकता है। तो जो फील्ड है उसको थोड़ा चेंज करना जरूरत है। एक फील्ड है डिजाइन की, मालूम है? सोशल मीडिया पे जो डिजाइन्स बनती हैं, इस फील्ड में अगर कोई लड़की सीखती है कहीं पे तो उसको तुरंत जॉब मिलती है, और अच्छी जॉब मिलती है। 1-1 लाख रुपए सैलरी है उसके अंदर, किसी को पता ही नहीं है। वीडियो एडिटिंग का इतना ज़्यादा ग्रोथ है, किसी को नहीं पता। तो मैं चाहूँगा आज हम सेल्फ डिफेंस के ऊपर ही बोलेंगे, क्योंकि आज का हमारा सेमिनार वही है। फिर मैं कोशिश करूँगा कभी मेरे पास टाइम होगा और हम मिलके बात कर लेंगे। हम जॉब के लिए सेमिनार रखेंगे कि कौन सी जॉब में हमारा कैरियर हम बना सकते हैं इजीली, और जो महिला अनएजुकेटेड है वो भी कुछ कर सकती है जॉब के लिए, उसके ऊपर हम सेमिनार करेंगे।
तो गोल होना जरूरी क्यों है, एक सिंपल चीज बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, BMW कार है। कितने लोगों को पता है BMW कार? बहुत लोगों को पता है। BMW कार बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अच्छी कार है ना। उसके अंदर फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल पूरा भरा हुआ है, राइट। और रोड भी बहुत अच्छी है, एक भी ब्रेकर नहीं, जैसे एक्सप्रेस हाईवे होता है ना, सीधा रोड है, खाली रोड है। आपको ड्राइविंग भी बहुत अच्छी तरह आती है, आप ड्राइव भी अच्छी कर लेते हैं। पेट्रोल पूरा भरा हुआ है, गाड़ी अच्छी कंपनी की है, रोड भी बहुत अच्छी है, ड्राइविंग भी आती है। एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ये हमारे लाइफ के साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी के साथ यही हो रहा है। आपकी फैमिली, आपका समाज कितना भी सपोर्ट कर ले, जब तक खुद का कोई टारगेट नहीं बनाओगे, मुझे जाना कहाँ ये पता ही नहीं है, कोई सपोर्ट कर ले तो क्या करेगा। मान लो आपको यही नहीं पता है कि मुझे टिकट कौन से स्टेशन की लेनी है, तो विंडो का जो टीटी देगा क्या आपको? टिकट जो काटते हो आपको कहाँ की टिकट देगा? उसको बताना तो पड़ेगा जाना कहाँ है। किसी से लिफ्ट मांगोगे तो आपको पता तो होना चाहिए जाना कहाँ है, लिफ्ट कैसे मांगोगे? सिंपल तरीका है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। आपकी कुछ भी उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक नाम सुना होगा, किचन का एक बहुत चिकन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, उसका नाम है KYC, शायद नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा ब्रांड है KFC, क्योंकि वो मेरे से दूर रहता है वो सब चीज़ें तो मुझे वो सब चीज़ें मतलब नहीं होता है। तो वो ब्रांड के जो ओनर हैं, जब उनकी उम्र 60 से प्लस हो गई थी, रिटायरमेंट की एज थी, तब उन्होंने पहली स्टार्ट किया, तो इतनी तकलीफ पड़ी, वहाँ पे नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने कर्जा लेके, ब्याज से पैसा लेके, इधर-उधर से करके उन्होंने क्या किया मालूम है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाला, पता लगा आग लग गया उसके अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। रिटायरमेंट में आज हर कंट्री में उनकी लाखों फ्रेंचाइजी हैं। अंडरस्टैंड? पढ़ने से लिखने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपका टैलेंट क्या है वो चीज़ है। और ऐसे भी देखा जाए कि इतिहास रचने वाले ज़्यादा अनपढ़ लोग ही हैं। धीरू भाई अंबानी को ले लो, अंबानी साहब है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मालूम है? अंगूठा छाप है, स्कूल ही नहीं गए कभी। आपने एक महिला का नाम सुना होगा, मुंबई की एक लेडीज होती है और आज करीब 3200 करोड़ रुपए की कंपनी बना के बैठी है। कल्पना सरोज नाम है। कल्पना सरोज, उसकी स्टोरी कैसे मालूम है? उसकी जब उम्र थी 7 साल की उम्र थी, तब उसकी मम्मी ऑफ हो गई, अकेली रह गई। 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, 12 साल की 13 साल की हुई, तब पापा ने उसकी शादी करा दी। मराठी फैमिली से थी, दलित परिवार की बेटी। जब वो गई वहाँ पे ससुराल में, तो हस्बैंड दारू पीने वाला मिलेगा, जिसको बेवड़ा बोलते हैं मुंबई में, ड्रिंकर। और रोज़ मारना, रोज़ पीटना, खाना नहीं देना, कुछ नहीं करना, लड़की की मरने की जैसी हालत हो गई। जब फर्स्ट टाइम मायके में आई तो उसने वो लिक्विड पीने की कोशिश की मरने की, लेकिन वो नहीं मरी, बच गई। उसकी बुआ ने दवा जल्दी से हॉस्पिटल लेके गई तो उसको इलाज हो गया। फिर लड़की ने सोचा कि ज़िंदगी मुझे जीने नहीं दे रही है और मौत मुझसे गले भी नहीं लगा रही है, तो मैं कुछ करके दिखाती हूँ। और वो लड़की ने 2 रुपये रोज़ के धागे पे कटिंग करती थी। और उसने धीरे धीरे अपनी एक मशीन बनाई, 1 से 2 बनाई, 2 से 10 बनाई, 10 से 1000 मशीन बनाई। आज 1 लाख से ज़्यादा महिला उनका मंडल है, इतना बड़ा मंडल है उनका, मंडल चलाती है बहुत बड़ा। और कमानी करके बहुत बड़ी कंपनी है मुंबई की, उनकी ऑनर है। तो और पढ़ी कितनी है? 7 क्लास। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अभी हम एक कंपनी लेके आए, इसका नाम है रामा ग्रुप, जो भी रियल एस्टेट में कदम रख रहा है। और वो इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप घर बैठे, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको टाइम कितना देना है? केवल 2 मिनट, लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं घर बैठे। क्योंकि हमको पता नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग स्टेटस जो यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप का स्टेटस, वो किस में यूज करते हैं हम ज़्यादा? फोटो रखने में, सब रखने में। लेकिन ऐसे भी लोग हैं वर्ल्ड के अंदर जो 12 से लेके 15 करोड़ रुपए महीने का इनकम करते हैं स्टेटस से। इतनी बड़ी पावर है उसके अंदर, लेकिन हम उसका यूज ही करना नहीं जानते। तो वो सब कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसमें भी हम, जो महिलाओं की जरूरत होगी इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे जरूर।